I am Dr. Shatrupa Chakravarti and we shall be studying statistics today, right? Now, with a show of hands, tell me how many of you are a little bit afraid of stats? किस किस को numbers से डर लगता है थोड़ा सा? लगता है? लगता है? किस किस को ऐसा लगा कि हम psychology पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि इसमें numbers शायद हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा? How many of you felt that way? Now you are thinking, oh my God, there is stats, right? So you don't have to worry, okay? You don't have to be afraid. I'll tell you the only way and the most effective, most simplest way of doing well in stats is if you practice, right? So as जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आसानी होगी एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस से पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है? सो इन आवर स्टैट्स पेपर know that you will be getting a lot of homework from me, right? You will be given a lot of numericals that you would have to do, and you would have to give me the answer sheets and we will be checking and we will be going through them, right? So now the question arises that we are psychologists, why do we need to study stats, right? Why? हमको क्या ज़रूरत पड़ गई जबकि हमारा काम तो behavior and behavioral analysis से है, right? We want to understand the emotions and we want to understand the cognitions and all of those things, motivations. Why do we need stats? We need stats because as individuals, we are all different. हम हर कोई एक दूसरे से अलग अलग है, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम हमारे अपने अंदर ही कितना ज़्यादा वेरिएशन है, राइट? कभी हमारा मूड बहुत खुश होता है, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कई बार हम लोग मॉडरेट होते हैं, राइट? हमारे एक पर्टिकुलर एज तक हमारे मोटिवेशंस एंड डिज़ायर्स कुछ एक प्रकार के होते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे मोटिवेशंस एंड डिज़ायर्स थोड़े कुछ और चेंज हो जाते हैं, है ना? तो ये जो होता है, ये इसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं, राइट? वी वेरी, वी चेंज, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वी आर ऑल वेरी सिमिलर टू ईच अदर, राइट? हम सबको इज्जत चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे से लोग बिहेव करें, हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें होए. We all want to live healthy, happy, prosperous lives, all of us, right? So despite of so much variability, there is so much similarity within us also, right? In statistics, we want to understand how much individuals, how much a particular sample, how much a particular kind of a group varies from other groups, varies within that group, एक ग्रुप के अंदर में कितना ज़्यादा वेरिएशन है, राइट? एज वेल एज यू नो उस वेरिएशंस की वजह से क्या सर्टेन इम्प्लीकेशंस निकल के आते हैं, राइट? I'll give you one example now. Let's say as psychologists, you guys will soon be practicing, right? थोड़े दिनों बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, right? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शट द डोर प्लीज़, और सामने से नहीं, यहाँ पे बैठिए, हाँ, okay. As after a few years, you will be practicing, let's say, and when you practice, sit over here, या वहाँ से जाइए, right? You will soon be practicing. When you practice, you will be working with individuals who are dealing with difficult problems, right? Difficult problems. Let's say anxiety or depression, right? Individuals who are suffering from these issues, right? And you as a counselor, you as a psychologist would be expected to help them out in some way. Devise some sort of an intervention plan, right? Devise some sort of an assessment technique, right? तो जब आप इंटरवेंशन प्लान्स डेवलप करेंगे, आपको एक ऐसा इंटरवेंशन प्लान डेवलप करना पड़ेगा जो कि सच में सही मायनों में इफेक्टिव हो, है ना? एक इफेक्टिव इंटरवेंशन प्लान, कोई आड़ा टेढ़ा जैसा तैसा इंटरवेंशन प्लान आप किसी इंडिविजुअल हु सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी उसको तो नहीं दे सकते ना, उसका ही नुकसान हो जाएगा इस तरीके से. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट यू वुड हैव टू कम अप with a plan which is effective. How do you develop a plan which is effective? You would have to do significant psychological research, or you would have to rely, you would have to depend on significant psychological research done by others, right? And इस research में, ये जब हम research करते हैं
तब हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करके उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। इसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम स्टैटिस्टिकल स्किल्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूटिलाइज करें। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर्स बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से, तो आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, भले ही आप राइट, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फेमिलियर एंड यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू कैरी आउट द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इज दिस क्लियर? यहाँ पे समझ आया कि रेलेवेंस क्या है, मतलब क्या है स्टैटिस्टिक्स समझने का, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एज साइकोलॉजिस्ट वी फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स, राइट, और एज डेटा एनालिस्ट्स ऑल्सो, राइट। हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन सब एरियाज़ में हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जब हमको ऐसी जगहों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा के साथ काम करना पड़ता है, जहाँ पे आपको ट्रेंड्स निकालना पड़ता है, ट्रेंड्स एनालाइज करना पड़ता है, जहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि क्या चीज़ पॉपुलर होने वाली है, राइट, आपको प्राइसेस डिटरमिन करने पड़ते हैं। ऐसे सेटिंग्स में भी काम करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आना एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो देयरफॉर स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर, right, of your course. It's a very critical paper which will help you a lot even when you are looking out for jobs and when you are employed, ठीक है। Now as a psychologist since आप variability के साथ डील करेंगे, हम ये पहले समझते हैं कि variability क्या होती है। वेरिएबिलिटी क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल? इंग्लिश में वेरिएबल का क्या मतलब है? जो चीज़ वेरी करे, जो चीज़ चेंज है ना। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल वैल्यूज़ ले पाए उसको हम वेरिएबल कहते हैं, राइट। दैट विच वेरीज, ठीक है, जो भी चीज़ वेरी करता हो। आप मुझे बताइए, हाइट वेरिएबल है, एक इंडिविजुअल की हाइट वेरिएबल है ना। हाइट जो कंपोनेंट है, जो कैटेगरी है, कई सारे वैल्यूज़ ले सकता है। वेट इज़ वेरिएबल, लेवल्स ऑफ एंजाइटी इज़ वेरिएबल, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरिएबल, राइट। ये सब चीज़ें हम इंडिविजुअल्स के अंदर में होती हैं और ये सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। Since as a psychologist you would be working with variability, right, it is important that you understand statistics. Let's say whenever a clinical psychologist takes on a client who is, let's say, suffering from anxiety, वो सबसे पहले एक एंग्जाइटी का असेसमेंट करवाता है, राइट। एंग्जाइटी का असेसमेंट में जो स्कोर आता है उस स्कोर को वो इंटरप्रेट करता है कि ये इंडिविजुअल हाई ऑन एंग्जाइटी है कि लो ऑन एंग्जाइटी है, राइट। एंड इफ़ ही इज़ हाई ऑन एंग्जाइटी तब अलग तरीके का ट्रीटमेंट पैटर्न बनता है, और अगर वो लो ऑन एंग्जाइटी है तो अलग तरीके का ट्रीटमेंट पैटर्न बनता है। तो समझ आया कि ये ट्रीटमेंट पैटर्न अलग अलग इसीलिए दिया जा पाया क्योंकि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो था उसको जो पैटर्न में जो असेसमेंट में जो फिगर्स आए थे, जो नंबर्स आए थे, उसको एनालाइज करने का तरीका आता था। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इवन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इवन फॉर कोर क्लिनिशियंस टू बी एबल टू मेक सेंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल नंबर्स। इज दिस क्लियर? आर वी क्लियर? ओके,
स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के 3 मेन फंक्शन है, राइट। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के 3 मेन फंक्शंस है। जितने भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है हमारे पास में, बेसिक से लेके एडवांस तक, उनके 3 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है डिस्क्रिप्शन। आपके पास जितना भी डेटा है, मान लीजिए आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा को डिस्क्राइब करना, राइट। डेटा में कौन से वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, मीन क्या है डेटा का, मीडियन क्या है, मॉडरेट, इस तरीके से जो है ये अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, मीन, एवरेज, राइट, मीडियन, मिड पॉइंट, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। व्हेनेवर वी गेट लेट्स से maternal mortality rate, right? Maternal mortality rate means how many women died while giving birth, right? So अगर maternal mortality rate का जब हमारे पास में डेटा आता है तो हम सबसे पहले मीन निकालते हैं कि एवरेज रेट क्या है, तो ये आपका एवरेज मैटरनल मोर्टालिटी रेट होता है। हम मोड निकालते हैं कि किस एरिया में या फिर किस एज में आके मैटरनल मोर्टालिटी रेट मैक्सिमम था, राइट। तो वो आपका फ्रीक्वेंसी या फिर मोड बन जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से इफ आई टेक द हाइट डेटा ऑफ दिस क्लास ओनली एंड इफ आई फाइंड आउट कि 157 सेंटीमीटर के मैक्सिमम बच्चे हैं, तो वो हमारा मोड डेटा बन जाएगा। 157 विल बी द मोड, which means that majority students are of 157 सेंटीमीटर in height। मान लीजिए एवरेज मैं निकालती हूँ इस क्लास के हाइट का और एवरेज आता है 151 सेंटीमीटर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑन एन एवरेज इस क्लास के बच्चे 151 सेंटीमीटर हाइट के हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिड पॉइंट ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा सेट, राइट। So if I say that midpoint of the height distribution of this class is let us say 155 सेंटीमीटर, मैं ये कहूँगी कि आधे बच्चे 155 सेंटीमीटर से कम है और आधे बच्चे 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 155 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द हाइट डेटा ऑफ दिस क्लास है। इज दिस क्लियर? दिस इज द डिस्क्रिप्टिव डेटा, राइट। डिस्क्रिप्टिव डेटा जो होता है, द नेक्स्ट फंक्शन दैट स्टैटिस्टिकल टेक्निक must carry out is inference। इन्फरेंस का मतलब है कि एक छोटे सैंपल में से जो फाइंडिंग निकली है, उस फाइंडिंग को मैं एक बड़े सैंपल की तरफ मैं जनरलाइज करना चाहती हूँ, ठीक है। इसको इन्फरेंस ड्रॉ करना कहेंगे, राइट। मान लीजिए यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, देयर आर 60 or 70 of you, 60 of you over here, and और मैं आप सबका हाइट डेटा लेती हूँ और उससे मैं लेट्स से BA ऑनर्स साइकोलॉजी का जो इतना बड़ा सा क्लास है उसके बारे में मैं अगर कुछ कहना चाहती हूँ, तो इस प्रोसेस को इन्फरेंस ड्राइंग कहेंगे। इफ़ आई फाइंड आउट दैट द मीन if I find out that in a sample of let's say 5-year-old children, in a large representative sample of 5-year-old children, the mean weight, the average weight is let's say 12 or 15 kgs, right. I want to draw an inference कि this 12 or 15 kg can be the mean weight of a larger population of children, right। जब मैं एक छोटे सैंपल की फाइंडिंग्स को बड़े सैंपल में जनरलाइज करना चाहती हूँ, इसको इन्फरेंस ड्राइंग कहते हैं। इज दिस क्लियर?
छोटे सैम्पल में से फाइंडिंग्स को अगर मैं बड़े सैम्पल में, बड़े पॉपुलेशन में अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो इसको हम इन्फरेंस ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग इन्फरेंस ड्राइंग को लेके बहुत ज़्यादा, इन्फरेंस ड्राइंग बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि एज साइकोलॉजिस्ट और एज रिसर्चर्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कैरी आउट रिसर्च ऑन द होल ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की आबादी ही इतनी ज़्यादा है और अगर हम हर एक रिसर्च को प्रत्येक इंडिविजुअल के साथ लेके करना चाहें तो हमारे पास ना ही इतना पैसा है, ना ही इतना मैन पावर है। तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बनाते हैं और उस सैम्पल के ऊपर हम अपना रिसर्च वर्क कैरी आउट करते हैं और उस सैम्पल में करी गई रिसर्च वर्क से जो फाइंडिंग्स निकली है हम उसको पूरे पॉपुलेशन की तरफ जनरलाइज करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को इन्फरेंस बिल्डिंग, इन्फरेंस ड्राइंग कहते हैं। इज दिस क्लियर? समझ आया? ओके। द थर्ड फंक्शन is data exploration, data simplification. Data exploration, data simplification, right? Data exploration, data simplification में हम trends analysis करते हैं, right? हम लोग सभी लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करते हैं। हम लोग को पता है कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड वही होता है जो अभी या फिर आगे जाके जो चीज़ पॉपुलर होने वाली है उसको हम ट्रेंडिंग चीज़ें कहते हैं। ट्रेंड्स कहाँ से निकल के आता है? ट्रेंड्स डेटा से निकल के आता है, राइट? सो a huge amount of data is analyzed in order to find out what is going to be the upcoming trends in the upcoming months, upcoming week और upcoming year. मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। पैंटोन करके एक कंपनी का नाम है जो कलर ऑफ द ईयर बनाता है, राइट? पैंटोन कलर ऑफ द ईयर। पैंटोन कैसे बनाता है? पैंटोन हर साल के एंड में पैंटोन अगले आने वाले साल का कलर ऑफ द ईयर डिसाइड करता है। 2024 का कलर ऑफ द ईयर है पीच, राइट? उनको कैसे पता चला कि 2024 का कलर ऑफ द ईयर पीच होना चाहिए? उन्होंने 2023 में बहुत सारे ट्रेंड्स को एनालाइज किया, बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज किया, कंजम्पशन पैटर्न्स को एनालाइज किया, जो चीज़ें ट्रेंडिंग, जो चीज़ें पॉपुलर है उनके कलर्स को एनालाइज किया और इतना सारा डेटा एनालाइज करके पैंटोन ने ये कंक्लूड किया कि आगे आने वाले 2024 में पीच कलर की चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर होगी, लोग पीच कलर की चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, राइट? तो 2024 में आप बहुत सारे ब्रांडिंग को पीच कलर में देखेंगे, बहुत सारे कपड़े, जूते, एक्सेसरीज पीच कलर में देखेंगे, बहुत सारे होम एंड इंटीरियर डेकोरेशंस आप पीच कलर में देखेंगे, वेरिएशंस ऑफ पीच। व्हाई? बिकॉज दिस वाज एनालाइज्ड, this trend was analyzed from a huge amount of data and from that this came as the conclusion that in 2024 peach color is going to be very, very popular, right? This is all possible because of statistical analysis, right? This is all possible because there are statistical methods which are determined, which are there working for this sort of trends analysis. इसी को हम डेटा सिंप्लीफिकेशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आई? एनी डाउट्स अप अंटिल नाउ? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, descriptive statistics are those statistical techniques which help us understand what is going on in our data. हमारे पास में डेटा है, मान लो मेरे पास में 5,000, 10,000, 15,000 इंडिविजुअल्स का डेटा आता है, राइट? लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, आई हैव द IQ scores of 15,000 स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, राइट? तो अब मैं अगर ये जानना चाहूँ कि एवरेज IQ क्या है, राइट? तो इस डेटा में मैं कई सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के मैं निकाल सकती हूँ।
In order to find out the average IQ, I need to use the mean formula, और mean formula से मुझे पता चल जाएगा. In order to find out what is the maximum number of maximum IQ point which comes out for 15,000 kids, मुझे mode लगाना पड़ेगा. I just need to simply count the maximum number of frequency. जो maximum occurring होगा वो mode होगा, right? इस तरीके से जो डेटा में एग्जैक्टली क्या क्या ट्रेंड्स बन रही हैं ये मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से पता लगा सकती हूँ, राइट? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हम 1 या मोर देन 1, 2, राइट, वेरिएबल्स के आपसी इंटरैक्शन को भी हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम मीन निकालने की कोशिश करते हैं तो मीन में हम एवरेज सम ऑफ द टोटल स्कोर्स एंड वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स, राइट? तो हम यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ एग्जामिनेशन हम ले रहे हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी एंड द टोटल वैल्यू, राइट, सम वैल्यू. तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से ही पॉसिबल हो पाता है कि हम डेटा में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये हम पता लगा पाए, राइट? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी डू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा. Only when we carry out the descriptive statistics, only when we are able to make sense of the data, we will be going ahead and utilizing inferential statistics, right? साथ ही साथ में descriptive statistics में we use a lot of graphical distribution, tabular distribution, a lot of it in order to understand. You might find कि descriptive statistics बहुत simple और boring है, राइट? कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे यार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या ही है, मीन ही तो है. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर सेवरल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस who depend on these descriptive statistics solely for making critical business decisions, right? For example, in order to understand कि कितना सेल हुआ है इस पर्टिकुलर साल में, तो हम कई बार मोड का यूज़ करते हैं या फिर मीन का यूज़ करते हैं, राइट? एंड दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द होल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ आवर कंपनी. इन दिस केस योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कम्स टू सेव द डे. कई बार जब हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, राइट, विथ आवर सुपर बॉसेज एंड बॉसेज, दे जस्ट वांट टू सी द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट, दे जस्ट वांट टू सी इट इन अ पाई चार्ट फॉर्मेट कि आप मेरे को फ्रीक्वेंसी परसेंटेज बताओ, केवल आप मेरे को केवल मीन बताओ, राइट? इससे ज़्यादा मुझे नहीं जानना. इन दिस केस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू यूटिलाइज, एंड उसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट? सो ये सब चीज़ें, दैट इज़ वाई descriptive statistics is important. In another area in which descriptive statistics is most important is qualitative research, right? Qualitative research में frequencies को हम ज़्यादा देखते हैं, frequency of a particular behavior occurring, right? How many time is a particular behavior occurring in a particular setting, in a particular culture, right? जब ये इस तरीके का स्टडी होता है, जब इस तरीके का रिसर्च होता है हमारा, तब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं. यूजुअली क्वालिटेटिव मेथड्स विल नॉट यूज अ लॉट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बट दे विल यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स generally in order to find out the frequency of a particular behavior, or whether a particular behavior is considered popular or not, whether a particular whether a particular kind of a behavior, kind of a phenomenon happens frequently or not. Is this clear? यहाँ तक समझ आया? Any doubt? Yes. जी, फ्रीक्वेंसी और मोड एक ही चीज़ होती है, ठीक है? अब हम अगला आते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकालना चाहते हैं एक छोटे से सैंपल से, तब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. इन साइकोलॉजी वी यूज़ अ लॉट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. यहाँ से क्या इधर
इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस पीछे से जाइए, पीछे से जाइए। राइट, सो आप लोगों की क्लास, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ पे जा रहे हैं? क्लास है कहीं और? कैन यू शट द डोर प्लीज? हाँ, राइट। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वी फाइंड आउट अबाउट द पॉपुलेशन from a small sample, right? And we do this because we might not have the manpower, or it might not be possible to study the whole of population, right? मान लीजिए आप इंडिया में डिप्रेशन का कितना रेट है ये आप जानना चाहते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल 132 करोड़ की आबादी को तो नहीं कर सकते हैं ना आप स्टडी। आप एक छोटा सा सैम्पल ले सकते हैं और उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट certain facts about the entire population. When you do this, you will be utilizing inferential statistics. Yes. सैम्पल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। सैम्पल जब भी आप लेंगे, जब भी आप अपने स्टडी में सैम्पल को लेंगे, your sample should be representative of the entire population, right? अगर आपने representative sample नहीं लिया है, मान लीजिए आपने सैम्पलिंग करने में गलती की है और representative sample नहीं लिया गया है, in this case आपके जो findings भी होंगे वो generalizable नहीं हो पाएंगे, जो कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत सारे हमारे टेस्ट्स एंड असेसमेंट्स के साथ में। कई सारे टेस्ट्स एंड असेसमेंट जो पेपर पेंसिल टेस्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न पॉपुलेशंस में स्टैंडर्डाइज हुए हैं, लेकिन हम उनको इंडियन पॉपुलेशन में यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। कई बार वेस्टर्न पॉपुलेशन में स्टैंडर्डाइज टेस्ट इंडियन पॉपुलेशन में करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो सैम्पल लिया था अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए वो वेस्टर्न सैम्पल था, और वेस्टर्न सैम्पल इंडियन सैम्पल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। There's a huge amount of difference, so that there comes a bit of a struggle, there comes a bit of a problem, right? So whenever you want to generalize the findings from a smaller sample to a larger sample, you will be utilizing inferential statistics. Is this clear? समझ आया? Any doubt? No? All right. Okay. Now let us try to understand a few terms. जब हम किसी भी सैम्पल का कोई भी डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स मतलब मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इसको हम डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब भी हम एक सैम्पल का एक छोटे सैम्पल का जब भी हम डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स निकालना चाहेंगे, तो मान लीजिए मोड निकाल लिया, तो उस मोड को हम सैम्पल स्टैटिस्टिक कहेंगे, ठीक है, सैम्पल स्टैटिस्टिक कहेंगे। एक सैम्पल, एक छोटा सा सैम्पल, मान लीजिए 100 लोगों का सैम्पल आपने लिया है और उन 100 लोगों का हाइट का मीन निकाल लिया है आपने, तो उस मीन को हम सैम्पल स्टैटिस्टिक कहेंगे, नॉट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट, सैम्पल स्टैटिस्टिक कहेंगे। जब भी सेम चीज़ डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, जब भी हम पूरे पॉपुलेशन का हाइट का मीन निकालना चाहते हैं या किसी भी वेट का व्हाटएवर मीन निकालना चाहते हैं और मीन निकालते हैं, जब भी हम मीन निकालते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पॉपुलेशन का हमेशा पैरामीटर निकलता है, सैंपल का हमेशा स्टैटिस्टिक निकलता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक से
पैरामीटर की तरफ जाने तक के जर्नी को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से पैरामीटर की तरफ जाने के जर्नी को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक से पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स से पैरामीटर नहीं, स्टैटिस्टिक से पैरामीटर की तरफ जाने के जर्नी को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इस सैंपल के किसी डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स से जब हम पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम कुछ कहना चाहे, कुछ सिग्निफिकेंट बात कहनी चाहे, तो इसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इज दिस क्लियर? समझ आया? आर यू क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। क्या चीज? डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सारे डिस्क्रिप्टिव इंडेक्सेस होती हैं, ठीक है। मतलब मीन, मीडियन, मोड को हम मीन, मीडियन, मोड अलग ना कह के डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स भी करके कह सकते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। नाउ वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग दैट विच कैन चेंज, है ना। तो वेरिएबल वो जो चीज़ कोई भी वैल्यू ले सकता है उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट, वेट 0 से लेके वॉटेवर नंबर कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। तो इसको तभी वेट हमारा वेरिएबल हो सकता है। हाइट वेरिएबल है, 0 से लेके वॉटेवर सेंटीमीटर्स तक हाइट जा सकती है, तो हाइट। एरिया इज़ अ वेरिएबल। लेवल ऑफ एंग्जाइटी विद इन एन इंडिविजुअल इज़ अ वेरिएबल, राइट। ये सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कुछ एक वैल्यूज़ ही ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रूम अगर इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, तो अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टुडेज़ क्लास में काउंट करूँ तो वो एक कुछ होल नंबर ही ले सकता है ना। होल नंबर ही हो सकता है, कोई यहाँ पे आधे बच्चे या फिर पौने बच्चे तो नहीं बैठे हुए हो ना। तो मे बी देर आर ओनली 40 चिल्ड्रन और 42 चिल्ड्रन, राइट। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास can take only some values which are whole numbers, right. तभी number of children sitting in a class will become a discrete variable, right. Why? Because number of children sitting in a class right, ये number of children, ये variable जो है मेरा, ये डिस्क्रीट इसलिए है क्योंकि दिस वेरिएबल कैन ओनली टेक सम वैल्यूज ओनली, राइट। इट कैन टेक ओनली होल वैल्यूज। आई कैन ओनली से कि आइदर 40 और 41 और 42 चिल्ड्रन आर सिटिंग हियर। आई कैन नॉट से 42.5 चिल्ड्रन आर सिटिंग हियर और 42.33 चिल्ड्रन आर सिटिंग हियर। आई कांट, राइट। सो देयरफॉर दिस बिकम्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल। देयर इज एन एग्जाम्पल। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, राइट। कंटिन्यूअस फॉर एग्जांपल हाइट, राइट। हाइट जो है, मेरा हाइट 155 और 156 सेंटीमीटर के बीच में भी हो सकता है। मेरी हाइट 155.23 सेंटीमीटर्स भी हो सकता है। किसी और का हाइट 160.17 सेंटीमीटर भी हो सकता है। Since the variable of height can take any value, therefore this is called a continuous variable. However, जब हम लोग साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, therefore for ease of doing calculations, ताकि हमारे कैलकुलेशंस हम आसानी से कर पाए, हम अपने कंटिन्यूअस वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल्स में चेंज करते हैं, राइट। तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स में। इज दिस क्लियर? ऑल राइट। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट।
जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मान लो जब भी मैं गई डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो डेटा मैं बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, लेट्स से मैंने 1000 डेटा कलेक्ट कर लिया, विच इज़ ए ह्यूज नंबर, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इस इतने सारे डेटा को, मेरे को आई नीड टू मेक सेंस ऑफ इट ना, मुझे थोड़ा समझना तो पड़ेगा कि तो द ईजिएस्ट वे टू मेक सेंस ऑफ एनी डेटा इज टू ग्रुप इट, राइट। अब ग्रुपिंग ऑफ डेटा, grouping of any data, how we group a data depends on the data itself, right. मान लो, I'll give you an example. Let's say I have, let's say this is a class that I have, और मैं यहाँ पे बैठे बच्चों को on the basis of their jacket color segregate करना चाहती हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ बच्चे, कई बच्चे ब्लैक जैकेट पहने हैं, उनके मैं ब्लैक जैकेट वालों का एक अलग ग्रुप बना देती हूँ। कई जो वाइट जैकेट पहने उनको वाइट जैकेट वालों का अलग ग्रुप बना देती हूँ, जो ब्राउन पहने उनका ब्राउन का अलग ग्रुप बना देती हूँ। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स बना दिए। तो जब मैंने डेटा को इस तरीके के रैंडम क्वालिटेटिवली, राइट, क्वालिटी के हिसाब से मैंने ग्रुप को मैंने जब डिवाइड किया है, इसको मैं नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहूँगी, राइट। नॉमिनल स्केल, राइट। नॉमिनल स्केल में जो वेरिएबल होगा उसको क्वालिटेटिवली हम सेग्रीगेटिंग करेंगे, राइट, क्वालिटेटिवली। लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ आई कलर और हेयर कलर, राइट। इस बेसिस में मैं डेटा को डिफ्रेंशिएट करूँगी, ग्रुपिंग करूँगी, या फिर कैटेगरीज बनाऊँगी। क्वालिटेटिव कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा, क्वालिटेटिवली मैं डेटा को कैटेगराइज करूँगी, ठीक है। मैंने बच्चों को उनके जैकेट कलर के हिसाब से ग्रुप कर दिया है, तो बस बात इधर ही आके ख़त्म हो जाती है ना। मैं इसके बेसिस पे, इस ग्रुपिंग के बेसिस पे मैं कुछ कह तो नहीं सकती ना। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि ब्लैक जैकेट वाले जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है येलो जैकेट वालों से। आई कांट से समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी वेरी डम, है ना। और आई कांट से दैट दोज हु हैव ब्लू कलर्ड आईज are more attractive than those who have black colored eyes. I can't say, it's a personal preference, right? But I cannot make any statement of this sort, right? So nominal data में यही होता है। nominal data में हम केवल categorizations कर सकते हैं, but we cannot make any conclusive statement about the different category and their ranking, their positioning, anything of this sort. समझ आई बात? Is this clear? समझ आया? नॉमिनल डेटा से हम केवल कैटेगराइज करते हैं डेटा को, राइट, सिर्फ कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, इस जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं डेटा को, तो नॉमिनल स्केल का एक क्वालिटी होता है कि जो कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल स्केल is mutually exclusive and exhaustive. नॉमिनल स्केल के हिसाब से जो डेटा हम कैटेगराइज करते हैं वो डेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सैंपल में हर एक आइटम जो है वो किसी न किसी एक ही कैटेगरी में फिट होगा। नो आइटम इन द सैंपल कैन फिट इन मोर देन वन कैटेगरी। एक आइटम के लिए एक ही कैटेगरी बना है, वो दो कैटेगरी में जाके ऐसे इधर उधर नहीं फिट कर सकता है, एक ही कैटेगरी में वो फिट होगा। इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। इसका मतलब है कि सैंपल का एक आइटम, एक इंडिविजुअल केवल एक कैटेगरी में फिट हो सकता है। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है? कैटेगरीज तब तक बनेंगे जब तक हर एक आइटम ऑफ द सैंपल कैटेगराइज ना हो चुका हो, राइट?
कैटेगरीज हम तब तक बनाते रहेंगे जब तक एवरी आइटम हैज़ नॉट फाउंड अ कैटेगरी टू फिट इन। इसको हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहेंगे, राइट, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। समझ में आई बात? ये नॉमिनल स्केल की खासियत है। नॉमिनल स्केल के अगला स्केल होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल आप ऑर्डर के साथ समझिए। ऑर्डर का क्या मतलब है? एक ऑर्डर में हम लगाते हैं, है ना, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, कोई एक ऑर्डर में हम चीज़ें सेट करते हैं, है ना। तो ऑर्डर से आता है ऑर्डिनल, ऑर्डर शब्द से आता है ऑर्डिनल, ठीक है। तो जब भी इस नॉमिनल स्केल में दिए गए कैटेगरी को हम एक ऑर्डर में लगा देते हैं, मान लीजिए, या फिर हम एक सैंपल में जो कैटेगरी बनाते हैं, सैंपल से जो हम कैटेगरी बनाते हैं, उसको हम एक बड़े से छोटे या फिर छोटे से बड़े के ऑर्डर में हम जब सेट करते हैं, तब हम ऑर्डिनल स्केल लगाते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 100 बच्चों का ग्रुप है, जिसमें बच्चों की हाइट है 145 से लेके 160 सेंटीमीटर तक। जब मैं कैटेगरी बनाऊं तो मैं 145 टू 150, 150 टू 155, 156, 151 टू 155, 156 टू 160, ये 3 ग्रुप में बना के जब बच्चों को मैं डाल देती हूँ, तब मैं एक ऑर्डिनल स्केल का यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ग्रुप बना रही हूँ जहाँ पे सबसे छोटे हाइट के बच्चे हैं, एक ग्रुप बना रही हूँ जहाँ पे 151 से 156 मॉडरेट मिडिल हाइटेड बच्चे हैं, और एक ग्रुप बना रही हूँ 156 टू 160 टॉल बच्चे हैं जहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का जब मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, जहाँ पे सबसे बड़ा, छोटों का भी एक ग्रुप है, मिडिल का भी एक ग्रुप है और बड़ों का भी एक ग्रुप है, तब मैं ऑर्डिनल स्केल का यूज़ कर रही हूँ। समझ आया ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल से कैसे डिफरेंट है? नॉमिनल स्केल में हम किसी रैंडम क्वालिटी के बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में कोई एक लॉजिक है, मेरे मन में कोई एक थॉट है कि मैं बड़े से छोटे के बेसिस में मैं ग्रुपिंग करूंगी, ठीक है, और मल्टीपल ग्रुप्स में बनाऊंगी, फ्रॉम यंगेस्ट, फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो राइट, इसके बाद आता है इंटरवल स्केल, ठीक है। इंटरवल स्केल में क्या होता है? इंटरवल स्केल में जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कैटेगरीज होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कैटेगरीज इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल, height is an example, okay. Let's say 1 इंच और 2 इंच के बीच में 1 इंच का ही फ़र्क है, 2 इंच और 3 इंच के बीच में भी 1 इंच का फ़र्क है, 3 इंच एंड 4 इंच के बीच में भी 1 इंच का ही फ़र्क है, राइट। तो ये जब हम इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, इस तरीके से जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि एक कैटेगरी और दूसरे कैटेगरी और दूसरे कैटेगरी और तीसरे कैटेगरी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तब हम इसको इंटरवल स्केल कहते हैं, ठीक है, इंटरवल स्केल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल स्केल आ जाएगा, ठीक है। क्या, बैठो बैठो, हाँ। आगे वाले के बड़े को छोटे, अच्छा आप क्लास इंटरवल के उसको कह रहे हो? नहीं, ये अलग है, ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। तो मान लो ये डिफरेंट है, आप जो कह रहे हो वो क्लास इंटरवल का फाइंडिंग है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंटरवल स्केल में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सेल्सियस का जो स्केल होता है ना, टेम्परेचर मापने के लिए सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट का स्केल लगता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट के स्केल में क्या होता है, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा और उस डिग्री से एक और डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा, तो दोनों जंप में इक्वल डिस्टेंस है ना। 1 डिग्री से 2 डिग्री का जो डिफरेंस है और 2 डिग्री से 3 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 ही है, राइट, 1 ही है। एक एक स्टेप से ही हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टेम्परेचर को एक इंटरवल स्केल में हमने डिवाइड करके रखा है,
सेल्सियस स्केल को हमने इंटरवल स्केल में डिवाइड करके रखा है, जहाँ पे हर एक स्टेप अबव दूसरे पीछे के स्टेप से केवल 1 डिग्री ही ऊपर होगा, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला 1 डिग्री से 2 डिग्री का जो डिफरेंस है वो हल्का सा डिफरेंस होगा और 2 डिग्री से 3 डिग्री का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 31 डिग्री में जो आपको गर्मी लग रही है और 32 डिग्री में आपको हल्की सी 1% ही ज़्यादा गर्मी लगेगी और 32 से 33 डिग्री में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 31 से 32 डिग्री एंड 32 से 33 डिग्री का जो डिफरेंस है वो केवल 1 डिग्री का ही डिफरेंस है। इज दिस क्लियर? समझ आया? फाइनली वी कम टू अ वेरी क्रिटिकल स्केल कॉल्ड रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इंटरवल स्केल के जैसा ही है, लेकिन रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो है, राइट, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। अब रेशियो स्केल जो होता है वो प्योर साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, प्योर साइंसेस में बहुत यूज़ होता है। रेशियो स्केल साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हम लोग इंटरवल स्केल तक ही हमारा काम बनता है। रेशियो स्केल प्योर साइंसेस में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि प्योर साइंसेस में एब्सोल्यूट ज़ीरो है, राइट, एब्सोल्यूट ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा आपको, राइट, एब्सोल्यूट ज़ीरो एरिया मिलेगा आपको। ज़ीरो एरिया मतलब कुछ भी एरिया नहीं है, राइट। लेकिन साइकोलॉजी में आपको ज़ीरो एंग्जाइटी किसी में नहीं मिलेगा, है ना, ज़ीरो डिप्रेशन किसी में नहीं, ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस कोई भी नहीं है, ज़ीरो IQ वाला कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि इंडिविजुअल्स में सारे गुण और दोष होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कम ज़्यादा कहीं पे होता है, तभी इंडिविजुअल्स में रेशियो स्केल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे अंदर ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं मिलता है, राइट। सो रेशियो स्केल possesses all the properties of interval scale, but in addition it has absolute zero. ठीक है, it has an absolute zero also. All right. With this we come to the end of our lecture today, and do you have any doubt? इक्वल, कोई भी इक्वल डिफरेंस होता है इंटरवल स्केल में। बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, 1 नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वॉट एवर, बट फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट द स्केल इट विल रिमेन इक्वल, ठीक है। इज दिस क्लियर? एनी अदर डाउट? एनीथिंग एल्स? ओके, in case you don't have any doubt, I shall be sharing the PPT with you all, and also the resources, जो books वगैरह है जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, मैं आप लोगों के साथ में share कर दूंगी, and you should read on your own. In case you have any other doubt, you should ask. All right, thank you so much. Attendance mark नहीं किया ना? हाँ, सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया?